السلام علیکم. آج میں ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. وہ ٹاپک ہوگا ویئر ٹو بائی اے ہاؤس ان کیلگری البرٹا. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں مجھے کامنٹس میرے ویڈیوز پر آئیں. نہ صرف کامنٹس بلکہ میں نے کچھ اور جو سوشل میڈیا کے کیلگری کے پلیٹ فارمس ہیں اس میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں ہاؤسنگ کے بارے میں, کہاں پہ کون سی بیسٹ کمیونٹیز ہیں جہاں پہ ہاؤس بائی کیا جا سکے, یا پھر لوگ جو انٹیریو سے البرٹا موو ہو رہے ہیں ان کے بھی بہت سے سوالات آ رہے ہیں کہ کہاں پہ جو ہے ہاؤس بائی کیا جائے, کون سی کمیونٹیز ہیں. تو یہ ساری باتیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ڈیٹیل کچھ باتیں, ایک صاحب آ رہے ہیں میرے گھر میں, بس میں ان کا ویٹ کر رہا ہوں, وہ آنے والے, ان سے آج بات کریں گے اور آپ کو ساری انفارمیشن جو ہے بڑی یوزفل انفارمیشن انشاءاللہ ہونے والی ہے وہ آپ کو دیں گے. تو میک شیور کہ آپ یہ ویڈیو جو ہے اینڈ تک دیکھے گا. اور بس میں ویٹ کر رہا ہوں جو ہے, اور پھر میں آپ کو جو ہے جیسے ہی آتے ہیں ہمارے بڑے جو ہے کیلگری کے ریئلٹر ہیں تو ان سے پھر بات کرتے ہیں. جی تو میں نے جن صاحب کا میں ابھی انٹروڈکشن میں ذکر کر رہا تھا, جودت شیخ صاحب ہمارے کیلگری کے مانے جانے ریئلٹر ہیں, وہ ابھی میرے ساتھ موجود ہیں. تو ان سے بہت سی باتیں کریں گے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا انٹروڈکشن میں کہ بہت سے لوگ نہ صرف کیلگری میں بائی پراپرٹی کرنے کا سوچ رہے ہیں بلکہ اونٹیریو سے بھی موو ہو رہے ہیں. وہ بھی ہاؤسنگ کے بارے میں سوالات ہر دن جو ہے سوشل میڈیا پہ آتے رہتے ہیں. تو جودت صاحب بہت بہت شکریہ اپنے ٹائم دینے کا. پہلا کوشچن تو لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کون سی کمیونٹی جو ہے کیلگری کی بیسٹ کمیونٹیز ہیں. اچھا, اب جب بیسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں جو دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے اسکولس پریورٹیز پہ ہوتے ہیں, پھر جو ہے کمیونٹی ایسوسیشنس ہوتی ہیں, فیسلٹیز ہوتی ہیں, لیکس, پارکس, آل دیز تھنگس. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی جو ہے اس پہ اور ڈالیں روشنی. تھینک یو. سو جو بیسٹ ہے نا, یہ بڑا ریلیونٹ ورڈ ہے. جو چیزیں آپ کے لیے بیسٹ ہیں ہو سکتا ہے مجھے ان کی بالکل پرواہ نہ ہو. میرے بچے اس ایج میں نہ ہوں جس ایج بریکٹ میں آپ کے ہیں. آپ پانی کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں, میں ماؤنٹینس کے پاس رہنا پسند. سو اٹ کوڈ بی ٹوٹلی پرسن ٹو پرسن, انڈیویجول ٹو انڈیویجول, ویری اے لاٹ. اگر آپ کو اسکولس کا کنسرن ہے, یو لائک کہ بھائی ویسٹرن چرچل بچا جائے, یو موو ٹو نولن, شیروڈ, ہیمپٹنس, دیٹ بریکٹ. آپ اچھے ہائی اسکول میں بھیجنا چاہتے ہیں یا ایلیمنٹری میں بھیجنا چاہتے ہیں, وارسٹی میں چلے جاتے ہیں. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں, فوڈ لور ہیں, آپ کو پتہ ہے 5 منٹ کی ڈرائیو میں آپ کو نان بھی مل جائیں, آلو والے نان بھی مل جائیں, آپ کو سارے دیسی کھانے اویلیبل ہوں, آپ شاید سٹی اسکیپ میں رہنا چاہیں, مارٹن ڈیل میں رہنا چاہیں, آپ کو کمیوٹ کا ایشو ہے, آپ سیڈل رج سرکل کے پاس رہنا چاہیں گے, ڈاؤن ٹاؤن جاب میں آپ بہت ایزی ٹریول کر سکتے ہیں. تو دیر از نو کرائٹیریا فار بینگ بیسٹ اور ناٹ. ویسے کینیڈا میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رینکنگز کرتے ہیں, اور ان رینکنگز میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں, فار ایگزامپل لیونگسٹن واز کمیونٹی آف دی ایئر فار کیلگری, موہاگنی ساؤتھ ایسٹ ہیز بین دیئر. سو کچھ فیکٹرز ان پلے آتے ہیں, اسکولس, کمیوٹ, لوکیشن, رنگ روڈ سے کیسا ہے, سی ٹرین سے کیسا ہے. تو دیر از نو کرائٹیریا ٹو ڈیفائن ون کمیونٹی ایز بیسٹ. بالکل, بہت اچھا آپ جی. آف کورس جس طرح کہ بیسٹ جو ہے ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مارکیٹ میں ہاؤس بائی کرنے جاتا ہے تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ریئلی دیکھنا چاہیے, جو کہ ٹک مارکس جو ہوتے ہیں فرسٹ, اگر آپ ریئلٹر کے ساتھ لیٹس سے اب جاتے ہیں, نہیں بھی جاتے ہیں, لیکن اب اپنی سیٹسفیکشن کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ریئلی دیکھنا چاہیے ہاؤس بائی کرنے سے پہلے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو آپ اپنی مسٹ ہیوز ڈیفائن کریں. بائی مسٹ ہیوز آئی مین کہ آپ کو سنگل اسٹوری چاہیے یا 2 اسٹوری چاہیے, کتنے بیڈ رومس چاہیے, کتنے باتھ رومس چاہیے, کیسی لوکیشن ہو. میک اے لسٹ آف مسٹ ہیوز, دین موو آن ٹو دی لسٹ آف نائس ٹو ہیوز. دس از ون سیٹ. ویدر یو ورکنگ ود اے ریئلٹر اور ناٹ, دس از اے مسٹ ہیو دیٹ یو شوڈ نو واٹ یو گیٹنگ ان ٹو. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ آپ کتنی پیمنٹ منتھلی کر سکتے ہیں کمفرٹیبلی. آپ $1,500 $1,500 پر منتھ ایز اے مارٹگیج پیمنٹ کمفرٹیبلی دے سکتے ہیں, 2,000 دے سکتے ہیں, 5,000 دے سکتے ہیں. دیٹس اے بگ کوشچن. ایوری بڈی وانٹس اے فرنٹ گراج, ڈبل اسٹوری, 2 walk out,
on a nice location, but everybody can't buy it. मेरी सिचुएशन डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट है, शिराज भाई आपकी डिफरेंट है. तो पेमेंट मस्ट हैव्स, नाइस टू हैव्स. जब आपने ये सॉर्ट आउट कर लिया हो, देन यू मूव इनटू द डायरेक्शन ऑफ selecting an area. I get buyers जो कहते हैं कि I want to live 5 minutes from the C train station, and I say okay, great, let's do it in Shaughnessy or Martindale or Saddle Ridge or Taradale or other communities which are very close to such a proximity. कुछ कहते हैं bus stop बिल्कुल घर के आगे हो. That could be anywhere. That's an easier question. कुछ कहते हैं मैं मेन रोड पे इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा साफ़ होती है, कल्डिसैक में, क्रेसेंट में आप कम होती है. तो आप अपनी मस्ट हैव्स डिफाइन करें. वंस यू हैव इट अलॉन्ग विद द बजट, देन यू विल बी गोइंग इनटू अ डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द राइट प्रॉपर्टी फॉर यू. दैट्स हाउ यू स्टार्ट द प्रोसेस. सही नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. इसी के जो है बिल्कुल साथ ही रिलेटेड एक क्वेश्चन कि बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि वो जो है देसी जो है पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटी में रहें, अपनी कम्युनिटी में रहें जहाँ पे उनकी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है उसके आसपास रहें. और नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में ऐसा एरिया है कि वहाँ पे हमारी बहुत सी कम्युनिटी रहती है, लेकिन एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट लोगों के जहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन आया था वो ये था कि नॉर्थ ईस्ट एक और ऐसा भी सेम एरिया ऐसा एरिया है जिसमें हेल भी होती है काफ़ी. तो क्या हेल एक ऐसा फैक्टर है जो आपको डिटर करता है कि उस नॉर्थ ईस्ट को कंसिडर ना करें हाउ व्हेन इट कम्स टू बाइंग योर हाउस? नहीं, पहली बात तो ये कि दिस इज़ अ मिथ के नॉर्थ ईस्ट में हेल होती है. हेल कहीं भी हो सकती है, बट येस इट्स अ हेल कॉरिडोर. इट्स अ रेड डियर से लेके कैलगरी तक इट्स अ हेल कॉरिडोर. यहाँ पे हेल दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है. हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हेल होती है क्योंकि लोगों को ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के हेल स्टॉर्म का पता है, बट दैट इज़ इनकरेक्ट. लास्ट ईयर जब हेल स्टॉर्म हुआ था तो वो नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ था और वो साउथ ईस्ट में उसके बाद हुआ था कुछ दिन बाद. कॉपरफील्ड, आई रिमेंबर, न्यू ब्राइटन, मुझे याद है क्योंकि आई हैड सम ट्रांजैक्शंस एंड वी हैड टू डील विद द हेल स्टॉर्म ओवर देयर. इस साल जो समर में हेल स्टॉर्म हुआ साउथ वेस्ट में हुआ. तो हेल कैन हैपन एनीवेयर. ये ऐसी कोई बात नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है और साउथ में कम है. इट्स अ स्टॉर्म. इट्स इन द बेल्ट, कहीं भी आ सकता है. That shouldn't be a decision factor when looking at the houses, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है, कहीं भी हो सकता है. कहीं probability ज़्यादा होती है बट नॉट नेसेसरली कि नॉर्थ ईस्ट की probability ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साउथ ईस्ट वर्सेस नॉर्थ वेस्ट, ये ऐसी कम्युनिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो पाकिस्तानीज़ देखते हैं यहाँ पे जाने का. तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बारे में आई नो कि आप जो है साउथ ईस्ट में भी लिस्टिंग करते हैं. दोनों कम्युनिटीज़ में जो है काफ़ी सेलिंग, आपकी बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है. तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बारे में थोड़ा सा आप जो है लोगों को बताएगा कि प्रोस एंड कॉन्स वगैरह जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन दो कम्युनिटीज़ में हाउस बाय करने के लिए. ओके, सो जो आपका क्वेश्चन है जो मुझे समझ आई है, आप चाहते हैं कि मैं कंपेयर करूं क्वाड्रेंट्स को साउथ ईस्ट वर्सेस नॉर्थ वेस्ट. दैट्स राइट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट साउथ ईस्ट फर्स्ट. जब मैं साउथ ईस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं एनीथिंग साउथ ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया. सो कॉपरफील्ड, न्यू ब्राइटन, मैकेंजी, ऑबन बे, मोहागनी, सेटन, all the way to where we are sitting in Legacy, Walden. So South East is a good place to live. A lot of young families, a lot of amenities. Let's say Mahogany. Mahogany is one of the best communities to live in Canada, not just Calgary. Sure. Auburn Bay is not less. इनका जो स्पिल ओवर होता है दैट गोज़ टू सेटन. बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी है. जो लोग वहाँ पे नहीं लेते और वो मक्लाउड के पास रहना चाहते हैं, दे प्रेफर Walden. They prefer Legacy क्योंकि newer builds are still cheaper over here vis-a-vis Mahogany, Auburn Bay. जो थोड़ा पुराना established areas में जाना चाहते हैं, they go to New Brighton, Copperfield, Mackenzie. So this is all about South East. Schools ठीक हैं, commute ठीक है, access to Stony है, especially अब ये South West side बनने से you could go to the West side as well. सिक्स का नेशन में आपका वो भी आ गया, कॉस्ट को भी आ गया. दैट एक्सेस इज़ ग्रेट. सो ओवरऑल
very good quadrant to live in, especially the lower part of the southeast. और जब हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट का थोड़ा सा एक ये है कि वी कंसिडर नॉर्थ वेस्ट एनीथिंग विच इज़ ऑन द वेस्ट साइड ऑफ डेयरफुट एंड नॉर्थ ऑफ एयरपोर्ट. तो ऑल्दो के फिज़िकली या स्ट्रीट एड्रेस के मुताबिक इसको डिवाइड किया जाता है फ्रॉम सेंटर स्ट्रीट, वेस्ट ऑफ सेंटर स्ट्रीट इज़ ऑल नॉर्थ वेस्ट, मगर जब कैटेगराइज किया जाता है तो कमेंट्री हिल्स को भी, हालांकि नॉर्थ ईस्ट का एड्रेस है, या लिविंगस्टन नॉर्थ ईस्ट को भी सारा एक ही कैटेगरी में आ जाता है. आप क्यों, एंड दिस गोज ऑल द वे टू टस्कनी ऑन द लेफ्ट, बाय लेफ्ट आई मीन वेस्ट. हम क्यों कंपेयर करेंगे इन दोनों को? इट रियली डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल नीड्स. यंग फैमिली है, यू लाइक लिविंग इन अ लेक कम्युनिटी, व्हाई नॉट मोहागनी, ऑबन बे. आप को कम्यूट का प्रॉब्लम नहीं है, स्टोनी ट्रेल इज़ गुड. आप डाउनटाउन जॉब करते हैं, you don't mind traveling, southeast is great. The people who are living here happy. I know that there are some musallas inshallah ताला जो मतलब in process है मामला, तो that also helps a lot. मगर साउथ ईस्ट एज अगर आप बात करें पाकिस्तानीज़ उतना ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है. पॉपुलेशन पाकिस्तानीज़ की यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है. इफ़ दैट डजंट मैटर, ग्रेट प्लेस टू लिव. चले जाते हैं नॉर्थ वेस्ट. जैसे ही नॉर्थ वेस्ट का नाम आता है, 2-3 चीज़ें क्लिक करनी होती हैं. यूनिवर्सिटी, मोस्ट किड्स गो देयर. एक्सेस यूनिवर्सिटी का, कम्यूट टाइम, सर विंस्टन चर्चिल. other schools are ranked higher. So education conscious लोगों को मैंने normally देखा है कि they always tilt towards northwest. That doesn't mean कि यहाँ पे साउथ ईस्ट के स्कूल नहीं अच्छे. सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कम है. अब यहाँ हम इस टाइम लेगेसी में बैठे हुए हैं, यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना 45 to 50 मिनट्स नॉर्मल टाइम में. अगर आप शेरवुड से जाएंगे या हैम्पटन से जाएंगे या नोलन से जाएंगे तो इट्स टोटली डिफरेंट. बहुत ज़्यादा न्यू कम्युनिटीज़ नॉर्थ वेस्ट में भी हैं. अब आप देखें एम्बल्टन आ गई, आपकी ग्लेशियर रिज आ गई, आपकी लिविंगस्टन नॉर्थ वेस्ट, लिविंगस्टन, कैरिंगटन. सो न्यू होम्स आर मोर ऑप्शंस इन नॉर्थ वेस्ट कंपेयर टू साउथ ईस्ट राइट नाउ. उसमें थोड़ा सा एक कैच है, आपने ये ज़रूर देखना है कि आपके बच्चों को डेजिग्नेटेड स्कूल कौन सा है, क्योंकि इन माई इन्फॉर्मेशन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शायद एड्री जाएं वाइल लिविंग इन नॉर्थ वेस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी. और नया हाई स्कूल भी बन रहा है, कमेंट्री हिल्स में बन रहा है. तो दैट्स हाउ इट इज़. मैं खुद वैसे महागनी को प्रेफर करूँगा नोलन पे, जस्ट माई ओन प्रेफरेंस, क्योंकि लेक कम्युनिटी है. सेम इज़ फॉर ऑबन बे. मगर याद रखिएगा व्हेन यू गो फॉर सच हाई एंड लेक कम्युनिटीज़, आपकी होम ओनर एसोसिएशन फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, $500-600 ऑन एवरेज. विज़ावी साउथ, विज़ावी नॉर्थ में मोस्ट कम्युनिटीज़ में $50, $150, $200 एंड दैट्स अबाउट इट. हाउसिंग की प्राइस को आप कैसे कंपेयर करेंगे बिटवीन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट? न्यू और ओल्ड? न्यू बोथ बता दें आप. सो नए घर तो ऑलमोस्ट सेम है कि अगर आप मोहागनी में बिल्ड कर रहे हैं या आप कैरिंगटन में बिल्ड कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर फुटेज, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ जीरो लॉट लाइन और कन्वेंशनल लॉट लाइन, वेरी कंपेरेबल. सिर्फ फ़र्क ये आता है कि कुछ आर्किटेक्चर कंट्रोल ज़्यादा लग जाते हैं. मोहागनी में अब आप बिल्ड कर रहे हैं तो आप हार्डी बोर्ड लगाएंगे या स्टको लगाएंगे, यू कैंट हैव वाइनल. You can get away with that in Carrington और Glacier Ridge और Ambleton. तो इसी तरह ऑबन बे में तो आपकी रीसेल ही अब रह गई है. यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वॉल्डन की प्राइसेस बेटर हैं विज़ावी नॉर्थ वेस्ट. आपके लेगेसी की प्राइसेस भी बेटर हैं. आप यू कैन गेट इनटू अ बिगर हाउस फॉर लेस. मगर वो वाले ज़माने गए जब यू कुड बाय हेयर फॉर 530-2500 स्क्वायर फीट. They are in 600 plus now. सही है. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि कौन सा टाइम होता है जो आप समझते हैं कि लोग ये भी बोलते हैं कि बेस्ट टाइम टू बाय अ हाउस में भी? इज़ देयर सच अ थिंग लाइक दैट एट ऑल? So
there's only two type of market. Rather, let's say three types of market. So there's a buyer's market कि जब buyers के पास ज़्यादा options होती हैं, इसका मतलब ये है कि inventory ज़्यादा है, buyer कम है, घर 20 लगे हुए हैं बिकने, बाजार में buyer 5 फिर रहे हैं. That's called buyer's market. You get the best deals at that time. क्योंकि you can negotiate more, there are more products available, you can choose. Then there's a balanced market, जिसमें buyers और sellers comparably same level पे होते हैं. बहुत ज़्यादा negotiation नहीं होती, बहुत कम negotiation नहीं होती, ठीक होती है. जितने घर हैं उतने ही लोग हैं, so it kind of balances out. एक होती है sellers market, which is now. Buyer कम है, buyer बहुत ज़्यादा है, properties कम है, inventory low है. उसमें it will always be harder for buyers to buy a house. They'll most likely compromise on price. Negotiations comparatively कम होती हैं. But this varies. अब आप किसी पुराने घर की बात कर रहे हैं जो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो that's not a seller's market house. That's like an average house. It will sell on average price if priced right. मगर एक बड़ा अच्छा हॉट घर है आपका 6.5 लाख का, 6 लाख का, मतलब दैट्स, और वॉकआउट है, लोकेशन भी अच्छी है, फिनिशेस भी अच्छी हैं, that would fly off the shelf without much negotiation. It might even end up with multiple offer situation. फिर जो 5 लाख से नीचे, that's very busy. क्योंकि most affordability लोगों की इतनी होती है कि 4.5-5 लाख, तो that also helps. अभी इस वक्त जो है कैलगरी की सेलर्स मार्केट है. Yeah, it is a seller's market right now. जी. अच्छा, आपने नेगोशिएशन की बात की, उसमें यही रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब आप नेगोशिएट करते हैं, लेट्स से कि अगर ख़ुद विदाउट इन्वॉल्विंग ए रियल्टर अगर कोई नेगोशिएट करना चाह रहा है एक ओल्ड हाउस के लिए, जो कि हाउस न्यू नहीं है, लेट्स से उसकी प्राइस 450 है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना रूम रीज़नेबल एक और रियलिस्टिक एक रूम होता है नेगोशिएट करने में प्राइस का, कि या आपको क्या अपने जहन में रख के जाना चाहिए जब व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशन? So further to elaborate your question, you mean कि जब एक बायर है और एक सेलर एंड देयर इज नो प्रोफेशनल इन्वॉल्व्ड. सो इसमें बड़ा सिंपल सी बात है कि देयर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर हाउ मच नेगोशिएशन वुड हैपन. अगर एक 400,000 का घर है और आपसे कोई उसके 500,000 मांग रहा है, तो देयर कुड बी अ negotiation of 100,000, which is 20% of the value of the house. And on the same time, if that's a 400,000 house and they're asking for 375, there'll be no negotiation at all. So if the property is priced right, it will sell quickly, it will have minimum negotiation. If it is overpriced, you will run into price reductions and it will take its due time, rather a long time to sell, और वही आपकी कैरिंग कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएंगी. और अगर कोई अंडर प्राइस्ड है, it will sell sooner. Normally price correction automatically हो जाती है. If there's a 400,000 house listed for 375 and there are 4 active buyers in the neighborhood, you may end up in multiple offer situation and it may sell for 380, 390, 400 depending on how much somebody likes it. So price is the key. अगर प्राइस ठीक है, मिनिमम नेगोशिएशन. अगर प्राइस नहीं ठीक, you'll have negotiation and a lot of negotiation. थोड़ा सा elaborate कर दूँ. आपने कहा ना कि बगैर realtor के, तो you would still need some data to analyze कि ये घर कितने का है. वो ये भी हो सकता है कि आप ये कहें कि मेरे सामने वाला घर इतने का बिका था, उसमें ये था. मतलब you could have very raw data or you could have a comparable market analysis by a professional, but still if it is priced right, minimum negotiation. बिल्कुल, आपने मेरा अभी क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट पूछने ही वाला था उसका जवाब भी दे दिया कि अगर किसी को, मेरा यही था, मैं पूछने वाला था, अगर किसी को एक नॉर्मल सा बंदा है, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक घर जो है उसकी क्या वो प्राइस राइटली है मार्केट पे नहीं है, तो वो किस तरह देखे. तो मे बी जस्ट गो ऑनलाइन, आप ऑनलाइन जा सकते हैं, फिर फिज़िकली लोगों से जो है मे बी अगर आपका इंटरेक्शन है तो आप यही कह रहे हैं कि पूछ सकते हैं इफ़ द रियल्टर इज़ नॉट इन्वॉल्व. So you're making a purchase which is a very big purchase, अब 4 लाख का, 4.5 का, 500,000, 300,000, regardless of, and it is one of the biggest purchase you'll be doing in your life. So whether a professional is involved or not, it is very important that you have the right data
There are a lot of websites online where you go and you kind of get a market analysis and a price. There are websites in which you punch an address and they'll give you, okay, this much is the price. That cannot be accurate, because the person who is running that website, he knows how much similar square footage sold in the neighborhood. He doesn't know कि कौन से काउंटर टॉप्स लगे हुए हैं, फ्लोरिंग लैमिनेट है या हार्डवुड है, सारे वॉशरूम टाइल्ड हैं कि नहीं, अप्लायंसेस 6000 वाला पैकेज है या 16000 वाला पैकेज है. सो दैट विल नेवर गिव यू एन एग्जैक्ट आइडिया. इट विल गिव यू अ बॉल पार्क विच कुड बी ऑफ बाई 10% ऊपर या नीचे easily. On top of that, some people go by property value assessment. There are two houses on the same street, right next to each other, same plan. One guy spent 50,000 in upgrades and one did not. Property assessment by City of Calgary will tend to be similar for both of them, because they are also going by comparable data and they're looking at the square footage. So online websites, property assessment, they're not the right to go with. Yes, आपके एक दोस्त ने वैसा ही घर लिया है और उसने 5 लाख का लिया है, और आप जो घर देख रहे हैं उसमें उससे बेहतर चीज़ें हैं, उसी लोकेशन में हैं, और वो आपको 480 का मिल रहा है. yes, you're right, go for it. But otherwise, hire a professional, get the real assessment done, get the real number done. अगर आप realtor engage नहीं भी करते हैं, there are people who appraise properties for living, वो आपको numbers दे सकते हैं. You could go to your bank and ask them to refer you to an appraiser. They'll charge their fee and they'll come up with one. But having a professional would help, regardless. थैंक यू. और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये इसी से रिलेटेड था कि एक रियल्टर जो है माशाल्लाह से काफ़ी है हमारे में, इंक्लूडिंग योर सेल्फ कैलगरी में, काफ़ी एक रियल्टर को इन्वॉल्व करने का व्हेन बाइंग अ प्रॉपर्टी, उसका क्या एक एडेड एडवांटेज आपको मिलता है? ऑफ कोर्स एक जो काफ़ी लोगों को इस बात का पता होगा, बहुत इसके एडवांटेजेस है, लेकिन आपसे मैं सुनना चाहूँगा और इसी पे इंशाल्लाह पे ख़त्म भी करेंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. अगर आपने घर बेचना है तो आपका जो बेस्ट मार्केट एक्सपोजर है दैट विल बी थ्रू अ रियल्टर. आप अपने 10 दोस्तों को तो कह सकते हैं कि मैं घर बेच रहा हूँ, मगर इट विल नॉट बी ऑन MLS, इट विल नॉट हैव द राइट एक्सपोजर. सो फॉर लिस्टिंग, येस, अ रियल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टू गेट यू द राइट प्राइस, टू गेट यू द राइट नेगोशिएशन, टू गेट यू द everything in place. For example, आपने basement suite बनाया and that's not a legal suite. ये कौन responsibility लेगा कि contract में इस चीज़ का proper disclosure किया जा सके ताकि it doesn't come back to bite you? या कोई काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, कोई material latent defects हैं, you would need advice to how to sell the property properly with best exposure, with minimum liabilities and the right way. आप ख़रीदने जा रहे हैं. There's so many times that we run into a situation that there are people who like a house and I'll tell them no, this is not the house for you, and they'll say why, and मैं कहूँगा इसके पीछे जो इस टाइम हमें पार्क नज़र आ रहा है that's zoned multi family, and हो सकता है 2 साल के अंदर एक पीछे कॉन्डो बिल्डिंग खड़ी हो जाए जो अभी आपको ग्रीन स्पेस लग रही है. ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, ये एक प्रोफेशनल के पास होगी, रिगार्डलेस ऑफ आप किसके साथ काम कर रहे हैं. या इसी तरह कि भाई लिविंगस्टन है, हमें पता है इसमें नॉर्थ में बहुत सारी कमर्शियल डेवलपमेंट आनी है विच विल गिव अ वेरी गुड अपलिफ्ट टू द कम्युनिटी व्हेन इट कम्स देयर, नॉट कॉमन नॉलेज. और ट्रेन के साइड पे जा रही है, सिटी की डायरेक्शन क्या है, स्टोनी कब कंप्लीट हो रही है. सो देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस. नॉट trying to market myself or any realtor, मगर realtors जो busy हैं वो 4 से 6 घर महीने के सेल या परचेज़ करते हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वैसे बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ साल में 4-6 करते हैं. बट ऑल ऑफ देम आर डूइंग मोर ट्रांजेक्शन्स देन योरसेल्फ बाय योरसेल्फ. लाइक आप ज़िंदगी में 3 घर ले लेंगे, 6 ले लेंगे, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका नहीं होगा. सो इट ऑलवेज हेल्प्स. कमिंग बैक टू this market we are right now into, it's easier to sell than buy. First time buyers बहुत सारी properties में miss out करते हैं. Realtors would know how to get you the property you want in a multiple offer situation. In
they would know about properties which are not even on market right now. Sellers के साथ काम करना इस टाइम comparatively easy है. फिर brand news I have seen both things happening. लोग खुद जाते हैं, बुक करते हैं and they are happy with it. Normally उनका दूसरा तीसरा घर होता है. लोग होते हैं जो प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करते हैं. दे वांट टू हैव समवन बाय देयर साइड व्हेन दे गो टू द सेल्स ऑफिस. बोथ ऑफ देम वर्क. जो जिनके साथ प्रोफेशनल्स होते हैं, दे विल बी एबल टू एडवाइस देम ऑन अपग्रेड्स. आई वाज सिटिंग विद अ जेंटलमैन लास्ट नाइट. ही बॉट अ हाउस फॉर 675,000. वेरी नाइस हाउस. His final ticket price was 825,000. So he spent around 20 to 25% of the value of the house on upgrades. And we were discussing it, and I said, had we known which direction you are into, I would have not let you spend more than 70,000, because then there's a point where the return on investment stops coming. क्योंकि जिन्होंने फिर 8,25,000 का घर लेना है, वो हो सकता है कि उस जगह पे ले ही ना. वो हो सकता है एक ट्रिपल गराज 3500 स्क्वायर फीट का घर ढूंढ रहे हो, या सर्कमस्टांसेस चेंज. तो a realtor will always bring value to the table, and that should help. परफेक्ट. बहुत थैंक यू वेरी मच. बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जुदित साहब ने शेयर की. आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं वो जो लोग देखेंगे जो इस वीडियो को, उनके लिए हेल्पफुल साबित होंगे. और आपके पास अगर कोई फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप डेफिनेटली, मैं जुदित शेख साहब के डिस्क्रिप्शन में जो है नेम एंड मे बी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इनकी परमिशन से दे दूँगा. तो जो है एनीबडी कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट जुदित शेख साहब. इसी नोट पर जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. खुदा हाफ़िज़.